Thank you so much to our esteemed panelists. It was a real pleasure having such disciplinary variety amongst our panelists today and hearing so many insightful comments from them. I would now like to invite Sabina Devan back up to the stage. Thank you so much for that excellent panel. And now it is my privilege and honor to welcome Sri Dharmendra Pradhan, Minister of the Ministry of Education, as well as Skill Development and Entrepreneurship. Sri Dharmendra Pradhan was elected to the Rajya Sabha, the upper house of India's parliament, representing the state of Bihar in 2012, and later from Madhya Pradesh in 2018. He has held various positions within the party, contributing to its growth and outreach. Prior to being appointed Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship in 2021, he served as the Minister of Petroleum and Natural Gas and the Minister of Steel, as well as various other economic ministries. He has contributed significantly to the development of education and skill sectors in India, emphasizing vocational training and the modernization of educational infrastructure. He has been truly remarkable in the work that he's been able to accomplish through the National Education Policy. He has played a pivotal role in implementing the NEP 2020 and in transforming much needed India's education system. He has been an avid advocate for empowerment of youth and the underprivileged through education, and he's also recognized for his grassroots level work and commitment to developmental projects in Odisha and across India. It's not easy in this environment to bring together various different perspectives to be able to agree on something like the National Education Policy. And so leadership in that vein is very important. And Minister Pradhan's work has really been of the highest quality, as well as displaying a real understanding of the nuances of the ground. So with that, sir, if I could invite you to please come up on stage to inaugurate the Center for Gender Analysis. If we could do the lamp lighting and then your opening address. Now, the Honorable Minister Dharmendra Pradhan will deliver his inaugural address for the Center of Gender Analysis. नमस्कार। जस्ट जॉब्स की प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबीना जी, मेरे मित्र आजीज प्रेमजी फाउंडेशन की सीईओ अनुराग बेहर जी, यहाँ सभी आदरणीय अतिथिगण और इस डे लॉन्ग वर्कशॉप में भाग लिए हुए सभी महानुभाव,
मैं सबीना जी का और अनुराग जी का आभारी हूँ। आप जैसे विद्वत जनों के साथ मिलने का एक उन्होंने अवसर दिया। अवसर की भी ये अवसर भी एक अच्छा कारण पे हुआ। मेरे को बताया गया ये जो संस्था जस्ट फॉर जॉब्स भारत में ऑब्जेक्टिव तरीके से कुछ विषय को एनालिसिस करने के लिए काम कर रहा है। अपने नाम के साथ ही उसकी परिचय होती है। अभी मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूँ तो थोड़ा मेरा एज के साथ मैं नई पीढ़ी की मानसिकता को समझ रहा था। मैं जब यहाँ बैठा पैनलिस्ट को ग्रिल करने वाले जो प्रश्न करता था, मैं बाद में उसके साथ चाय पीना चाहूँगा। कौन पूछ रहे थे? मैं जब यहाँ आया, अच्छा वो ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्रश्न उठा के चले जाते हैं। वो भी एक पीढ़ी है जो इम्पेशेंस टू हैव द आंसर। चलो ये भी डेमोक्रेसी में ये भी अच्छी बात है। कुछ लोगों की दायित्व तो होता है प्रश्न खड़ा करके चले जाना। लेकिन ऐसे एक ओकेजन पे हम लोग मिले हैं और उसकी अपने अपने नाम पे ही सेंटर फॉर जेंडर एनालिसिस और स्पेसिफिक जॉब्स फॉर जॉब से जेंडर एनालिसिस तक, ये अपने आप में एक बहुत वक्तव्य देने वाले एक बिग स्टेटमेंट। और हम जब 21st सेंचुरी की प्रारंभिक दिनों में एकत्रित हुए हैं और मैं आप लोगों को कुछ मिनट्स के अंदर जो कहीं भी जाओ थोड़ा प्रारंभिक 5-7 मिनट में माहौल पता चल जाता है। ये गैदरिंग सीरियस है, कैजुअल है, इवेंट के नाम पे इवेंट हो रहा है, ये सब पता ही चल जाता है। मैं थोड़ा पता कर भी सकता हूँ और मैं आपकी चेहरा पढ़ के कह सकता हूँ आप लोग सीरियस हो और दिन भर के बाद थके नहीं हो। और उस विषय पे एक आज आपने आपकी इंस्टीट्यूशन की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी सबकी प्रोफेशनल लाइफ में एक नई आयाम के साथ, ऐसा नहीं कि जेंडर एनालिसिस नहीं हुई होगी, सभी डॉक्यूमेंट्स में जेंडर की एक आज के दिनों में प्रायोरिटी बनी एक विषय है। आज के दिनों में नहीं, सभी समय में हमारी सभ्यता में वुमेन के बारे में, गर्ल्स के बारे में, महिलाओं के बारे में भाषा ही शायद अलग अलग हो, लेकिन इस विषय में प्रायोरिटी में चर्चा हुई है। जब कोई भी विषय पे हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, निश्चित रूप में उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकलता है, कुछ लर्निंग होती है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी को हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। प्रेरिता बैठी है, मैं उसको कहीं कहीं जाना पहचाना। मेरे जब रिवेलियन कह रहा था, मेरे घर में भी रिवेलियन लोग हैं और नए सोचने वाले लोग हैं, मैं उसको याद कर रहा था। मित्रों, हम जिस समय पे यहाँ हैं, हमारी देश में मैं पढ़ाई में पॉपुलेशन साइंस की पढ़ाई किया, पॉपुलेशन स्टडीज में पढ़ाई किया। तब से मेरे यूनिवर्सिटी डेज से मेरे को लगता था कि हमारे देश में जिस प्रकार की हम पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी वगैरह की बहुत धारणा नहीं थी। वो जैसे लड़की हमको अभी पैनल को पूछ रहा था 1 2 3 4 5 8 और उसकी जो आंसर भी आप लोगों ने बड़े चतुराई के साथ दिया। सारे चीज पॉलिसी में हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ये पॉलिसी वे फॉरवर्ड में निकल सकता है। ये एक सही ट्रेंड है। तब से मेरे मन में एक विषय आता था, तब पॉलिसी के बारे में धारणा नहीं था। किसी भी विषय को स्पष्टता बढ़ानी है, क्लैरिटी बढ़ानी है, यू मस्ट हैव द फैक्ट्स, यू मस्ट हैव द राइट असेसमेंट, राइट एनालिसिस,
हम 140 करोड़ देश में, 144 करोड़ हो गए हैं, 144 करोड़ देश में दुनिया की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हमारी देश की विशेषताएं अनेक है। यहाँ सुपर रिच भी है। बॉटम ऑफ पिरामिड की कोई डेफिनेशन हम बनाते हैं तो बॉटम ऑफ पिरामिड की सबसे निचले पायदाने के लोग भी हमारे देश में हैं। सबके एस्पिरेशन है, डेमोक्रेसी है, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। पॉलिसी हम सेगमेंट वाइज नहीं बनाते हैं, बनाते हुए बाकी इंप्लीमेंटेशन करते हुए कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन में उसकी चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ चीजों को हम फ्रेमवर्क करते हैं, हम फॉर ऑल बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं। जब इतने बड़े कैनवास के ऊपर हम काम करते हैं, तब हमें सही तथ्यों के ऊपर अगर हम इसकी योजना नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ समय आगे चलने के बाद हमको ध्यान में आता है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई, फैक्ट्स वर नॉट एक्यूरेट, प्रॉपर था, जिसके कारण जो हमको करना चाहिए हम नहीं कर पाए। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं क्या ये सरकारों की काम होनी चाहिए क्या? सरकार की काम तो है ही, बेसिक फैक्ट को इकट्ठा करना सरकारों के हाथ में प्रिविलेज रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। उसके बाहर कुछ संस्थाएं होते हैं, प्रारंभिक दिनों में, यानी कोई भी एक मॉडल को चलाते हुए प्रारंभिक दिनों में कुछ रिएक्शनरी फोर्सेस भी रहते हैं। ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हम एक प्रश्न खड़ा करते हैं। फिर जब मैच्योरिटी बढ़ती है, फिर आता है कि तो इसमें मेरा भी कुछ रोल है, मेरा भी कुछ दायित्व है। कभी कभी आप मैच्योरिटी को, परिपक्वता को अगर थोड़ा गहराई से उसकी फिलोसफी तक पहुंचोगे तो मैच्योरिटी का अर्थ क्या है, स्टेबल के अर्थ क्या है, परिपक्व के अर्थ क्या है, जिसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है। मैं जस्ट फॉर जॉब्स को अपने जर्नी में कभी लगा होगा कि हमें भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, फैक्ट आधारित, न्यूट्रल, जस्ट, एक्यूरेट। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को दिखते हुए अगर ट्रीटमेंट करने की पहले उसकी डायग्नोसिस ठीक से कर पाएगा, तब जाके उसकी ट्रीटमेंट ठीक होगी। सोसाइटी एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। ऑर्गेनिक एंटिटी को ठीक करने के लिए उनकी सारे घटकों की, सारे स्टेक होल्डर्स की असेसमेंट सही होनी चाहिए। और यहां तो हमारी, जिस बारे में आज हमने इस केंद्र को लोकार्पित किया, जब जेंडर के बारे में हम कहते हैं, स्वाभाविक हम उस दो, जेंडर तो दो ही है, मेल एंड फीमेल, एक हम और सुपर सेंसिटिव तरीके से हम उसको और वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम मेल एंड फीमेल कहते हैं। और ये मानना है कि ड्यू टू सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल रीजन, वुमेन आर लिटिल बिट डिसएडवांटेजियस देन मेल। ये एक धारणा है, ये अपना अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। अभी कभी उसको थोड़ा एनालिसिस करो तो ये भी उल्टा पड़ता है, ऐसा नहीं है। कई मामलों में महिलाओं की ग्रास्पिंग पावर, महिलाओं की एनालिसिस करने की ताकत, महिलाओं की जुडिशियस होने की ताकत, महिलाओं की ऑनेस्ट होने की ताकत, महिलाओं की लेबोरियस होने की नेचर, ये बायोलॉजिकली इन कंपैरिजन मेल ज्यादा होता है। लेकिन एक परसेप्शन बनी है, एक नैरेटिव बनी है कि उसके कारण वो नैरेटिव सिर्फ बनी नहीं है, कुछ कारण है। हम कोई भी चीजों में अभी हम लोगों का देखने का एक दृष्टिकोण बनती है। हमें अगर 21st सेंचुरी की प्लानिंग करनी है, हमें अगर प्रधानमंत्री जी की कही हुई विकसित भारत की टारगेट को लेकर आगे बढ़ना है,
तब हमें एक जस्ट सोसाइटी की प्लान करना पड़ेगा। जस्ट सोसाइटी में इक्वल राइट्स है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी रिसोर्स है। तब जाके एक वेलफेयर सोसाइटी अपने दायित्व को पूरा कर पाएगी। सरकारों की उसमें भूमिका है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की एंड प्रोफेशनल बॉडीज की भी अपनी भूमिका है। इसलिए आप जो आज इकट्ठा होकर इस काम को किए हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अनेक, पॉलिसीज भी अनेक है। मैं पिछले 9-9.5 साल में सरकार के अंदर रह के काम करने में मेरे अनुभव हो रहा है, चैलेंज प्रैक्टिस में है, चैलेंज उसको एक कैरेक्टर में परिवर्तन करने में, चैलेंज उसको एक नेचर में परिवर्तन करने में, चैलेंज उसको एक इकोसिस्टम खड़ा करने में है। कभी कभी एक विषय को करते करते उसमें से थोड़ा बोरियत भी आती है, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड उसमें आगे आता है। फिर उस हिसाब से लैंग्वेज बनती है, फिर उसके साथ परसेप्शन जुड़ता है, नैरेटिव बनती है। इसलिए सोशल डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए हर एक समय में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत डिसरप्शन हो रहा है। अगर हम कोरोना को एक टर्निंग पॉइंट हिसाब करते हैं, कोरोना ने दुनिया और भारत दोनों को कंपैरिजन करो, कई मामले में हम बच गए। बचने का एक प्रमुख अगर एनालिसिस करोगे तो उसमें महिलाओं की रोल ज्यादा है। उस समय में दुनिया में कोई घर नहीं होगा जिस घर में चिंता नहीं होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ये प्रश्न सुपर रिच की घर में भी आई थी, बॉटम ऑफ द पिरामिड में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी आई थी, आगे क्या होगा। ऐसे कुछ समय अप्रैल महीने में 2020 में सबके मन में आई, मार्च अप्रैल में, कि आगे क्या होगा। उस बैकग्राउंड से हम बाहर के आ रहे हैं, दुनिया बाहर के आ रही है। उस समय में हमें खुद को जब थोड़ा माइक्रो एरिया में एनालिसिस करते हैं, हम उसको सरवाइव कैसे किए, हमारी जॉब की नेचर कैसे बदला है, हमारी सोशल बिहेवियर कैसे बदली है, हमारी कामकाज की तरीके कैसे बदले हैं। 5 साल पहले व्हाट्सएप के अंदर बात करना, कॉन्फ्रेंस कॉल करना ऑनलाइन, ये किसी की कल्पना में नहीं था। आज हम सभी लोग दिन में 1-2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस किसी भी फॉर्म पे कर ही लेते हैं। इतने छोटे इनिशिएटिव में देखिए उसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट देखिए, सोशल इंपैक्ट देखिए, लाभ भी है, नुकसान भी है। प्रत्यक्ष मिलकर बात करने में जो कॉन्फिडेंस, जो कन्विक्शन बनती है, शायद वो टेक्नोलॉजी पे नहीं होती है। लेकिन सुविधा देखिए, उसके लिए एक छोटी सी मीटिंग करने के लिए कितने समय जाता था, कितने रिसोर्स जाता था, वो हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज करो तो उसको प्रोस कॉन दोनों प्रकार की रहती है। ये सारे अनुभवों में इन दिनों में, और ये भी है कि मैंने जैसे कहा कि मेरे दृष्टिकोण है कि सारे पिछले 3-4 साल की क्राइसिस को दुनिया की महिलाओं ने संभाल लिया। और भी एक एनालिसिस सकता है कि शायद इस समय में सबसे किसी की खराब अवस्था हुई है तो महिलाओं की हुई है। पुरुष तो बाहर पहले थे, घरों में नहीं आते थे, इसीलिए महिला अपना स्वतंत्रता के साथ रहती थी। अभी घर में रहे तो जिनको जो काम उनको आता नहीं था तो भी वो महिलाओं की कामों में हाथ लगा दिए, इंटरफेयर किए, तो उसमें से 4 नई चीज आई, कई चीज हुई, डोमेस्टिक सिचुएशन से लेके बाहर की दुनिया तक। और ये आने वाले दिनों में और होगा। पढ़ाई में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, ये हम मानते हैं। लेकिन इन दिनों में मेरे पास एक तथ्य आया, किसी पेपर ने मेरे को समझाया गया कि इन दिनों में अगर विशेष करके जो लोग डिसएडवांटेज है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन्हीं 4-5 वर्गों को अगर, जिसको हम डिप्राइव्ड ग्रुप कहा जाएगा या वंचित वर्ग कहा जाएगा, इन्हीं के अंदर महिलाओं की शिक्षा को मैं देखता हूं। पिछले 7-8 सालों में इन्हीं वर्गों में महिलाओं की पढ़ने की स्वभाव, पढ़ने की टेंडेंसी बढ़ी है।
क्वांटम जंप हुई है, इसकी इंपैक्ट भी आएगा। एम्पावरमेंट के साथ इसकी बात जुड़ी हुई है। आखिर सरकार किसी की भी, सरकार मेरी है, लेकिन सरकार किसी की भी रहा तो हमको वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करना ही पड़ा। मैं इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं दिखता हूं, मैं उसको 21st सेंचुरी में जो इमर्जिंग एम्पावरमेंट की प्रेशर डेवलप हुआ सोसाइटी में, अभी सब तो एमपी एमएलए नहीं होंगे, मैं टेक्नोलॉजी कैसे एम्पावर, मैं हर एक सप्ताह में देश की किसी ना किसी इलाका में, गांव में चले जाता हूं, जाना ही पड़ता है हम लोगों की कामों में। मैं एक ऑब्जर्व करता हूं एक चीज, जब मैं गांव में जाता हूं या छोटे कस्बे में घूमता हूं, लोग खड़े रहते हैं, छत के ऊपर से खड़े रहते हैं, साइड में खड़े रहते हैं, यार हम कहीं पहुंचे तो कुछ लोग मिलके दिखते हैं। मैं उसमें मार्क करता हूं एक ग्रुप उसका वीडियो करता है, जो एक्टिविटीज उस समय में होता है उसकी वीडियो करता है। वीडियो करने वाले कौन है? वीडियो करने वाले 2-5 प्रोफेशनल फोटोग्राफर या उस प्रकार की लोग, और ज्यादातर बाकी लोग हैं लड़कियां और महिला। मेरा एक अभ्यास है, पिछले 2-3 सालों में मैं जाके उनके पास थोड़ा पूछा हूं, आप क्या कर रहे हो? यानी वीडियो बना रहे हैं, क्या करोगे उसको? नहीं, हम फेसबुक में डालेंगे। ये अमूमन मैं देश के किसी भी इलाका में जाऊं, एक आंसर मेरे को मिली है। मैंने अभी अनुराग जी की एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसी संबंध में, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, वो भी कोट किए हैं, देश में किसी भी इलाका में जाओ उत्तर एक ही है, लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक छलांग लगाने के माहौल बन चुका है। स्टेम में लड़कियों की रुचि बढ़ रही है। पहले लड़कियां कहां, हमारी धारणा क्या था, क्या पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, ये बदल रहा है। इसरो में इस बार जब कम्युनिटी को हमने देखा, चंद्रयान 3 के बाद ज्यादातर महिलाएं थे। इसलिए सीरियस इलाका में गवर्नेंस के, आपने यहां लिखा है कि एम्पावरिंग वुमेन थ्रू बेटर गवर्नेंस, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। और मैं उल्टा मानता हूं, उस गवर्नेंस में महिलाओं की पार्टिसिपेशन सोशल चर्निंग के कारण बढ़ चुका है और ये अनस्टॉपेबल है। हम थोड़ा हाथ लगाएंगे, थोड़ा और नज करेंगे तो ये मल्टीफोल्ड हो जाएगा, ये इंक्रीमेंटल ना होके एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ये सारे करने के लिए यू हैव टू हैव द एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। टू हैव एक्यूरेट स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, you must have right data, right figures, right situation analysis. I think JobServe is doing wonderful thing by creating a separate initiative in the name of gender analysis. My best wishes are there with you, Shabina जी। आप निश्चित रूप में उसमें सफल होंगे और 21वीं सदी में और G20 की प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री जी ने कहा हम दुनिया को वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। अब ये जो बच्चियां हमारी ये जो प्रश्न उठाते हैं ना, ये हमको क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये मैं कोई पॉलिटिकल यहाँ कोई मैं नहीं जानता हूँ आप मेरे को वोट देंगे कि नहीं देंगे, इसकी कंपल्सन भी मेरे पास नहीं है। डेमोक्रेसी है, जिसको वोट दे। लेकिन मैं एक चीज कह के जा रहा हूं आपके पास, हम 5-10 साल के बाद कभी मिलेंगे, आप देखना भारत में नहीं दुनिया में महिलाओं की एम्पावरमेंट की स्थान सबसे ज्यादा कहीं होगा तो हमारे देश में होगा, भारत में ही होगा। और ये सही मायने में वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट के कारण ही होगा। महिला सारे फ्रंट में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे कोई ज्यादा बेनिफिशियरी है तो महिला है। एसडीजी को अगर कोई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, महिला कर रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन में कोई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है तो महिला है। इकोनॉमी को स्ट्रक्चर में डालने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है तो महिला की है। आज चुनौती है उस महिला की कंट्रीब्यूशन का हिसाब नहीं है। हम लेबर फोर्स में महिलाओं की कंट्रीब्यूशन को, हमारी आज की जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो एनालिसिस करते हैं, हमारी डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक एंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं।
ये बहुत दिन रुकने वाला नहीं है। मैं उन मित्रों को कभी मिलता हूं, मैं बोला आप रुकवा नहीं पाओगे, आपकी पैराडिम शिफ्ट करना पड़ेगा, आपके सारे कागज को बंद करना पड़ेगा, आपको नया मॉडल लेना पड़ेगा जिसमें भारतीय विचार व्यवस्था में आप इसको वेस्टर्न मॉडल में टेबल बना के भारत की महिला फोर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हम गांव में क्यों किसी भी व्यक्ति को 3 चीजों में बुलाते हैं, माँ बहन पत्नी तो 3 हुआ, बेटी हुआ, 3-4 इसमें अपने हुए, बाकी सबको हम क्या बुलाते हैं? किसी को मौसी बुलाते हैं, किसी को काकी बुलाते हैं, किसी को फूफा बुलाते हैं, किसी को बहन बुलाते हैं, किसी को ताई बुलाते हैं। क्या विश्व की कोई सोशल मॉडल में इस प्रकार की इंटरकनेक्टेडनेस है क्या? हमारी सिविलाइजेशन में इंटरकनेक्टेडनेस है। इसलिए हमें अभी 21वीं सदी में, मैं इसलिए इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को आता हूं, एक मोह पे आता हूं, हमें अपना एक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा भारतीयता को, भारतीय जीवन व्यवस्था में। मेरे को अनुराग जी ने कहा कि आपको चलना है, मैंने 2 मिनट सोचा नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। ये इंटरकनेक्टेडनेस है कि आई हैव माय ओन बिलीव एंड फेथ ऑन माय डियर फ्रेंड अनुराग जी। ये दुनिया में और कहीं नहीं है, ये सिर्फ मेरा और अनुराग की विषय नहीं है, ये सभी के साथ विषय है। हम इतने जुड़े हैं आपस में, रिश्तेदारी हमारी इतनी बड़ी है। हम इसको हम कभी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा है क्या? ये संस्कृत की 2 शब्द है क्या? ये हमारे लाइफस्टाइल है। संवेदनशीलता हमारी चरित्र में है। इसलिए हमें इस प्रकार की एनालिसिस करने वाला बॉडी, इस प्रकार की थिंक टैंक, इस प्रकार की सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडल बनानी चाहिए जिसमें भारत की जो लोग रहते हैं उनकी सोशल थिंकिंग, इनकी बिहेवियरल स्टाइल, इनकी इकोनॉमिक बिहेवियर, इनकी एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे को क्वांटिफाई करके इसको डाटा एनालिटिक्स करना पड़ेगा। इसी की डाटा माइनिंग करने से दुनिया में जो नई मॉडल आएगा ना, न्यू ऑर्डर विल कम फ्रॉम इंडिया। इसी विश्वास के साथ हम काम करिए। 5-10 साल के साथ मिलेंगे, ये जॉब्स फॉर जॉब और बड़ा हो जाए और ये सेंटर फॉर जेंडर एनालिसिस दुनिया की मॉडल यही। अब 2 चीज है, सेंटर ऑफ जेंडर एनालिसिस के पास 2 रास्ता है। एक एस्टैब्लिश वुमेन नैरेटिव को मैपिंग करने के लिए एक शॉर्टकट यूज करके, जो डिबेट हो रही थी, इसलिए मैं उस बच्ची के साथ में चाय पीना चाहता हूं कि एक एस्टैब्लिश नैरेटिव, इसको थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा लिटिल बिट अब्यूसिव, वी आर डिप्राइव्ड, ये एक नैरेटिव है। मैं इसके अर्थ नहीं कहूंगा कि महिलाओं को अत्याचार नहीं है, अन्यायों को, उनको डिस्क्रिमिनेट हम नहीं करते हैं, हम करते हैं। इसमें कोई सोसाइटी के स्वभाव है कुछ चीजों में, लेकिन इसी में आप इसको देखोगे या इंडियन इकोसिस्टम में जो चीज है, मेरा अपेक्षा रहेगा एज ए क्लाइंट, एज ए पॉलिसी प्रैक्टिशनर, मेरा अपेक्षा रहेगा सबीना जी आप सेंटर फॉर जेंडर एनालिसिस में एक इंडियन मॉडल ऑफ ह्यूमन एनालिसिस करो, जिसमें उस महिला की ममता की क्वांटिफिकेशन दुनिया में कहीं होती है क्या? अफेक्शन की क्वांटिफिकेशन कहीं हुई है? आप डेवलप करो। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर महिला दुख में रहते हुए भी दुनिया के बारे में कैसे सोचती है, उसकी क्वांटिफिकेशन हुई है क्या? इसकी एनालिसिस करो। वहीं से लेके आप भारत की माताओं की, बहनों की जो मूलभूत चरित्र है, मैं दुनिया में किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए अपेक्षा नहीं रख रहा हूं। अब आपकी जो अच्छाइयां है, जिसके कारण सिविलाइजेशन टिकी है, इसको आप एक ग्लोबल मॉडल बनाओगे। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने इंस्पायरिंग रिमार्क्स दिए हैं। जस्ट जॉब्स नेटवर्क और हमारे सेंटर फॉर जेंडर एनालिसिस की तरफ से हम आपको एक भेंट देना चाहते हैं। मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगी कि ये बच्ची कौन है।
ये बच्ची है नंदिनी जायसवाल, जो एक सुधार कैंप की नाम की जगह में, जो एक अर्बन इनफॉर्मल सेटलमेंट है कालका जी के पास में, वहाँ पे ये रहती हैं। और इन्होंने अपने आप को आर्ट करना सिखाया है और आज ये यहाँ तक पहुँच गई हैं कि कोई भी बाहर से आता है, जब इसका आर्ट देखते हैं तो कहते हैं हमें इसकी पेंटिंग्स खरीदनी है, हम लेके जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत फ़ख्र के साथ आपको आज इस बच्ची की हाथ की बनाई हुई पेंटिंग हम आपको भेंट में देना चाहते हैं। क्या बना है?